میں اگر ان کو برا لگا 10% کا، آصف علی زرداری بہت ایماندار لیڈر ہے. آصف علی زرداری اس نے سندھ کو نہیں کھایا. آصف علی زرداری اس نے پورے پاکستان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کر دیا. تو آپ تو سن لیں میری بات. اسپیکر صاحب، جن لوگوں کو عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھنی ہے، ایک دن کے لیے جیل سے رہا کرا دے، ہم دکھائیں گے کہ کتنا پاپولر ہے وہ. 13% کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے، 8 فروری کو قوم نے آپ کو جواب دیا. لیکن اگر آپ کو دوبارہ شک ہے تو دے مینار پاکستان. ٹھیک ہے کھٹک صاحب، آ گیا پوائنٹ، آ گیا آپ کا. شکریہ 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 کھٹک صاحب، آپ کا آ گیا پوائنٹ. مہتاب، محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا، بہت ہی افسوس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے جونیئر یا بیک بینچرز پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں تو اسپیکر کے چیئر کو ہمیشہ وقت کی کمی کا احساس بہت جلد ہوتا ہے. ابھی ہمارے جو فاضل ممبر یہاں پہ تقریر کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے، انہوں نے بہت ضروری باتیں کی یہاں پہ. لیکن اگر آپ فرنٹ رو چیک کر لیں تو اس ایوان کی تقدس کا، اس ایوان کی اہمیت کا اندازہ آپ ان خالی کرسیوں سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ادھر کوئی منسٹر یا کنسرن ہوتا تو ان کے گزارشات وہ اپنے ساتھ نوٹ کراتے. اور اسپیکر صاحب، میں اپنے ضلع کرک کے عوام کا انتہائی مشکور ہوں اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے مڈل کلاس نوجوان جو ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے اس نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور عمران خان اور تحریک انصاف کے نشان کے اوپر، اور نشان بھی وہ نشان کہ معذرت کے ساتھ میں ادھر اس نشان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا اور آپ کے نالج میں لانے کے لیے کہ جی جب ہم سے بیٹ کا نشان لیا گیا، جب ہم سے بلہ واپس لیا گیا تو صرف میری اور تحریک انصاف کی تذلیل کے لیے مجھے باجے کا نشان دیا تھا کہ صرف میری تذلیل کر سکے اور مقصد صرف یہی تھا. حالانکہ الحمدللہ میں تحریک انصاف کا ورکر، لیڈر اور سپورٹر اور الحمدللہ ایک سیلف میڈ نوجوان جو اپنے بلبوتے پہ اپنی محنت کی بدولت آج اور اپنے ضلع کے عوام کی بدولت اس ایوان کا دوسری دفعہ ممبر ہوں. اور پچھلی دفعہ بھی اس ایوان میں اور اب بھی میں بار بار اس ایوان کی تقدس کے بارے میں مختلف ممبران خیال کر رہے ہیں کہ جی اپنے اس ایوان کی تقدس جو ہے اس کو بار بار پامال کیا جا رہا ہے. اور ایوان جو ہے جس مقصد کے لیے یہ ایوان بنا تھا، یا یہ ایوان جو ہے یہ ہمارے 24-25 کروڑ عوام کی نمائندہ ایوان ہے. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر فارم 47 کے ذریعے ادھر موجود ممبران کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے ان کو منتخب نہ کیا ہوتا تو آج آپ اس چیئر کے اوپر نہ ہوتے اور نہ ادھر شہباز شریف وزیر اعظم کی کرسی پہ ہوتا. کیونکہ پاکستانی عوام نے مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا. اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر میرے ملک کے پاکستان 25 کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ضرب لگا دی تو کون کرے گا اس ایوان کو؟ کون اہمیت دے گا اس ایوان کو؟ کون سنے گا اس ایوان کی بات کو؟ اور جب آپ کے پاس اخلاقی جرات نہ ہو، جب آپ کے پاس مورل گراؤنڈز نہ ہو، جب یہ بات کریں گے تو اگلوں نے کیا کہنا ہے کہ جی چپ کر، فارم 47 کے ذریعے تجھے میں نے بنایا، تجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا. کیسے چلے گا میرا یہ ملک؟ کیسے آگے بڑھے گا میرا یہ ملک؟ کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور صرف 4-5 ادھر انہوں نے چھوڑی ہوئے، اور ادھر وہ افنڈرین جو ادھر سے گیا ہے ابھی میرے بارے میں اس نے ایک بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ داڑھی والا، الحمدللہ میری داڑھی ہے اور داڑھی جو ہے یہ سنت ہے. تمام انبیاء کرام
कि मुस्तकिल सुन्नत है, उसने कहा कि दाढ़ी वाले ने कर्नल शेर खान का मुजस्मा उठाया हुआ था। ये डान लीक्स करने वाले, जिन्होंने बाहर की दुनिया में हमारे फौज के खिलाफ बोलने वाले, आज फौज के बड़े तर्जुमान बने हुए इस ईवान के अंदर। डान लीक्स कराने वाला कौन है? आज चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी हुई है, उसको फॉर्म 47 के जरिए उसको बिठाया हुआ है, और ये कहता है कि जी इसने कर्नल शेर खान का जो मुजस्मा है वो उठाया हुआ है। हालांकि 9 मई को मैंने प्रोटेस्ट किया था। जिस तरीके से मेरे लीडर को गिरफ्तार किया गया था, जिस तरीके से इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में घसीट के लेके गए थे, जिस तरीके से लेके गए थे, मुझे था एतराज उस तरीके के ऊपर। बिल्कुल मैंने किया था अपने जिले के अंदर प्रोटेस्ट, उसमें 20-25 हजार लोग बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब एक गमला नहीं टूटा उसमें, एक गमला। पुरअमन एहतजाज था वो, और पुरअमन एहतजाज के बाद मेरे ऊपर 34-35 FIRs कर दी। एक गमला नहीं टूटा उस एहतजाज के अंदर, लेकिन मकसद कुछ और था। 9 मई इसलिए हम कहते हैं कि 9 मई एक बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाने के ऊपर थी। अगर इमरान खान को उन्होंने गिरफ्तार किया, जिस तरीके से गिरफ्तार किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान को आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हमने नहीं कहा। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान को रिहा किया गया, तकरीबन 5-6-7 दिन तक उनकी रिहाई के बाद जो जुल्म, जो जबर रियासत ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ किया, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ किया, वो 8-9 महीने, अल्लाह किसी को भी वो 8-9 महीने ना दिखाए, जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप के ऊपर जो जुल्म हुआ, जिस तरीके के साथ हुआ, अल्लाह ना करे कि वो इनके ऊपर आए। अगर इनके ऊपर आया, इनका लीडर जो अब ये बड़ा इनकलाबी उनको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बड़े इनकलाबी लीडर हैं, हालांकि उनके इनकलाब का आलम तो ये था कि जो ही उनको जेल में डाला, उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरना शुरू हो गए, उनको बीमारी लाहक हो गई। और जाना किधर है? इस मुल्क के ऊपर 40-45 साल तक हुक्मरानी की, 45 साल तक इस मुल्क के ऊपर काबिज रहे, एक अस्पताल नहीं बनाया कि उसमें अपना खुद का इलाज करा सकते। ये आलम था इनकी हुकूमतों का। और दूसरा, 3.5 साल की एक बेहतरीन हुकूमत, एक लीडर जिसने जो कौम को औलाद की तरह समझता था, खुद को कौम का वालिद का दर्जा दिया, एहसास प्रोग्राम शुरू कराया, सेहत कार्ड दिया इस मुल्क को, मईशत की बेहतरी के लिए वो इक़दामात उठाए जो तारीख में नहीं उठाए किसी ने। इसके अलावा कोविड के बावजूद 1.5 साल तक जो कोविड का मुश्किल दौर था, पूरी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान जो था वो ट्रैक पे आ गया था, पाकिस्तान जो था वो तरक्की की राह पे गामजन होने वाला था कि एक साजिश के तहत अपनी कौम के लिए एक लीडर जाता है रशिया ताकि मैं सस्ता तेल ले सकूं, मैं सस्ती गंदम खरीद सकूं। लेकिन जब वो मुल्क वापस आता है तो चूंकि उसने पहले एक दफा इनकार किया था, एब्सोल्युटली नॉट बोल चुका था, तो वो उन लोगों को जो खुद को आका समझते हैं, उनको नागुज़ीर गुजरा, उनको अच्छा नहीं लगा। और इधर कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी गद्दारों ने मिलके उस लीडर को, उस वजीर आजम को और उस हुकूमत को बेदखल किया। और उसके बाद होता क्या है जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, एक डायरी हाथ में लेके वजीर आजम हाउस से चलता है और बाहर प्रिजन वैन्स खड़ी होती है, अदालतें लगती है, और एक वो लीडर जिसने सारी जिंदगी 28-29 साल की सियासत में एक गमला ना तोड़ा हो, उसने हमेशा इस मुल्क में आईन और कानून की बात की, बाहर प्रिजन वैन आते हैं असेंबली के बाहर, वज़ीर आज़म हाउस के सामने खड़ी होती है और ऐसा मंजर पेश करने की कोशिश की कि जैसे इमरान खान आईन तोड़ देगा। हालांकि वो इमरान खान जिसने जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इज्जत दी, इमरान खान ने इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया, इमरान खान ने इस
मुल्क को शौकत खानम दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को नमल दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को सेहत कार्ड दिया, इमरान खान ने इस मुल्क को एहसास प्रोग्राम दिया और मेरे सब्ज हिलाली झंडे के पूरी दुनिया में उसने इज्जत कराई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब पूछना चाहता हूं कि कैसे उस लीडर के ऊपर 200 दहशतगर्दी के आप पर्चे कराते हैं? अगर इमरान खान इस मुल्क में दहशतगर्द हो गया तो फिर ठीक कौन हुआ जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब? और हमें इधर बैठ के ये अभी जो एक दूसरे के लिए डाइस बजा रहे हैं, हमें याद है इनके घसीटना। शहबाज शरीफ क्या कहता था कि अगर जरदारी को मैंने लड़काना कराची लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। तो अभी तेरा नाम चेरी ब्लॉसम रख दे, बूट पॉलिश रख दे, तो एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को वोट दे रहे। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, प्रेसिडेंट साहब की जो तकरीर है, अगर इसमें आप एक करेक्शन कर देते कि इसके साथ जनाब आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% लिख देते तो ये बेहतर होता। और ये हम नहीं कह रहे, ये उधर कल जो ख्वाजा आसिफ जो तकरीर कर रहा था ये वो कह रहा था। अगर 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 मिस्टर 10% लिख लेते इसके साथ तो जिन्होंने हार चुराए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की बदनामी की, आज वो गड़ी का जिक्र कर रहे हैं। आप लोगों ने तो हार चुराए थे, इस मुल्क की बेइज्जती कराई थी इंटरनेशनल लेवल पे, पाइनएप्पल नहीं छोड़ा, जानेमाज़ों तक को नहीं बख्शा, चटाइयां तक ले गए आप तो शाखाना से, और ये कहेंगे बेडशीट सब कुछ तक ये ले गए। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ख्वाजा साहब से बरामद कीजिए बेडशीट। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और जी, जब इनकी बारी होती है तो आप इनको 20-20, 25-25 जी देखें, मुझसे बारी आवाज इसी वार में किसी की नहीं है। नहीं करने देंगे तकरीर, ये भी नहीं कर पाएंगे, वो नाज़माल है खुद को। मुझसे बारी तकरीर किसी की भी नहीं है इसी वार में, आवाज किसी की भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, ये 20-25 एक घंटा हम इनकी तकरीरें सुनते रहे, अभी 2 मिनट की बात आई, इनको तकलीफ हो गई। सुने, बर्दाश्त करें, थोड़ा आप बड़े, हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा बर्दाश्त, हौसला रखें। शुक्रिया, या डिप्टी शुक्रिया, स्पीकर, शुक्रिया। ओके, मेहताब राशि साहिबा, माहौल जिस तरह चल रहा है आप उसको माहौल को खराब ना करें। आप तशरीफ रखे, हो गया आपके वाइंड अप करें, 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज, 1 मिनट में। माइक खोलें, खटक साहब का माइक खोलें, आप बोलें। खटक साहब वाइंड अप करें 1 मिनट में। डिप्टी स्पीकर साहब, खुला हुआ है माइक आपका। हमारे मामले में आपके पास टाइम की कमी आती है। और मैंने जी इधर वो अभी फिनरीन हनीफ अब्बासी जो गया है वो पर्सनल अटैक्स करके गया है। कल उधर ख्वाजा आसिफ जो खड़ा था पर्सनल अटैक्स कर रहा था, हमने सुनी उनकी बात, लेकिन हमारी 2 मिनट की तकरीर से इनको जी दे के सारी उनके तमाम को खड़ा कर दिया है। ये जो 10% का लफ्ज का है उसको एक्सपंज करते हैं। आप तशरीफ रखें। डिप्टी स्पीकर साहब, हो गया जी, आप तशरीफ रखें। मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे ना करने दे तकरीर, लेकिन मैं भी फिर इनको नहीं करने दूंगा। मैं कल ही काफी कर दिया ना आखिरी बात डिप्टी स्पीकर साहब, एक चीज इमरान खान जेल में कैद होकर अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गया है, आप लोग हार चुके हैं। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी का आपने अंदाजा लगाना है, ठीक है, तो शुक्रिया। ग्राउंड आपका, जगह आपकी। शुक्रिया, तशरीफ रखें। हो गया। मोहतरमा मेहताब अकबर राष्ट्रीय साहिबा।